Hello and welcome to Nico Original News Stories. I am Tarun Karthik. It's a Wednesday. Do remember to watch our bulletin every Monday, Wednesday and Saturday on Nico mobile app, on our YouTube channel and on our Facebook page. Let's start with the coronavirus updates. 2 new COVID-19 cases were detected in Andaman and Nicobar Islands recently. There are 74 active cases of COVID-19 in the islands now. Altogether, 149 cases of COVID-19 have been detected in the islands from the start, out of which 75 have recovered with zero deaths so far. Let's move on to our next story. BSNL Andaman Nicobar Island has been in the news for quite some time now. BSNL had to start the high-speed internet in Andaman Nicobar Islands on 1st July 2020, which did not happen. All through the lockdown, BSNL kept on making promises and giving new dates for the launch of high-speed internet. Nico met the Chief General Manager of BSNL Andaman and Nicobar Islands this morning at his office to get you the updates on the launch of high-speed internet in the islands. When Nico questioned the CGM on what is the status of our complete rollout of high-speed internet through CAN UFC, the CGM replied that BSNL is waiting for the launch event by the President of India. When Nico questioned him if BSNL has made any progress towards deciding a new tariff plan, the CGM answered that the current rental of Canny submarine optical fiber cable is too high and BSNL is making representations to the DOT to reduce the rental. Further, when we questioned him on why is BSNL not reducing the tariff plans even when USO is providing bandwidth free of cost for 3 months, the CGM replied that it has to be decided by the corporate office. When we questioned him on why BSNL is not responding to public queries and why his Twitter account dormant and not disseminating any information, the CGM replied that there is no official word, so we are not able to inform the consumers. Altogether, even the BSNL authorities here in Andaman Nicobar Islands do not know when the President of India will do the launch event, and there is uncertainty about when the services will start. Let's move on to our next story. Students across the country and worldwide are now using internet to attend to online classes and to give exams. There are thousands of students from Andaman studying in various colleges across India who are missing out on their classes and exams. Let's listen in to Mr. Sarthak, final year engineering student studying in Osmania University, Hyderabad. आया नहीं है अभी तक। प्रॉब्लम ये फेस हम लोग कर रहे हैं कि जैसे मैं मेलैंड में पढ़ता हूँ, हैदराबाद में मेरा कॉलेज है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। अब हमें क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कल को हो सकते हैं। अभी तो मेरा तो हुआ नहीं है पर्सनली, बट कुछ ही दिन में शायद वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हमारा कंडक्ट करेंगे। मेरा फाइनल सेमेस्टर है एंड इशू ये है कि अगर मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अभी दे नहीं पाया तो मेरा जो डिग्री जो मिलना रहेगा वो लेट हो सकता है, ये एक इशू है। और दूसरा, मेरे तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेलैंड से यहाँ आए हैं जिनको इंटरनेट ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे हैं। और यूजुअली एग्ज़ाम्स जो है सुबह 9-10 बजे से होती है, बट उस वक्त जो है इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है। तो आई थिंक किसी ऑफिशियल का सजेशन था अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप लोग रात को यूज़ करिए, लेट नाइट यूज़ करिए तो थोड़ा फास्ट रहेगा। बट उस वक्त ना क्लासेस होते हैं और ना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो मेलैंड में है, बैंगलोर में, केरला में है, हैदराबाद में है, जो लोग इसीलिए अंडमान नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। तो अब वो वहाँ पर जानबूझकर ठहरे हैं कॉलेज हॉस्टल्स में या फिर अपने पीजीज़ में, ताकि वो लोग इंटरनेट यूज़ करके ऑनलाइन क्लासेस पढ़ पाए, कोचिंग कर पाए। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं। देखिए, एग्जांपल्स तो मैं देता जाऊँगा। इशू ये है कि एट दी एंड कि इंटरनेट प्रॉमिस किया गया था और इंटरनेट अभी तक आया नहीं है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, आई रियली होप कि जो BSNL है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी, मैं चाहता हूँ कि ये लोग एक हमारे लोगों के बारे में सोचकर उस हिसाब से डिसीजन ले, ना कि अपना कन्वीनियंस देखे। क्योंकि अब जो BSNL को जो रेवेन्यू जो आ रहा है, आई थिंक अंडमान से कंपेयर टू अदर स्टेट्स अंडमान से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, क्योंकि यहाँ का BSNL के प्लान्स भी जो है हज़ारों में है। जो लोएस्ट प्लान जो 10 GB का प्लान आई थिंक 1200 रुपीज़ का है। सो आई थिंक BSNL अंडमान सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर वो यहाँ के लोगों को एक बार सोचे और अपना स्पीड को थोड़ा स्टेबल करे और स्पीड करे। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि
50 Mbps 100 Mbps आ जाए शुरुआत में ही, बट एटलीस्ट बेटर हो ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें इंटरनेट का। इंटरनेट बस आज की जो 2020 में इंटरनेट का मतलब बस ये नहीं है कि यूट्यूब में देख लिया या नेटफ्लिक्स देख लिया। इंटरनेट अब तो देखिए पूरा वर्ल्ड जो है एक पैंडमिक का शिकार है, और लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठकर सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं। तो अंडमान ही एक पीछे रह गया है पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो, क्योंकि इंडिया में हर जगह 4G है, अच्छा और सस्ता और स्टेबल इंटरनेट है, बट अंडमान के लोगों का क्या? हमारा हमारा भी हक बनता है कि हमें एक स्टेबल इंटरनेट मिले ताकि हम बिजनेस कर पाए ऑनलाइन। जो लोग टूरिज्म सेक्टर कल को जब शुरू हुआ तो वो लोग अपने गेस्ट वगैरह को जो कांटेक्ट करेंगे, आई थिंक दे विल कांटेक्ट वाया इंटरनेट ओनली। एंड जो यहाँ के स्टूडेंट्स है, सपोज यहाँ पर इंटरनेट होता और जो कॉलेजेस यहाँ के जेनाराम कॉलेज है या डिफरेंट जो भी कॉलेज से बंद है, अगर यहाँ हर बच्चों के पास इंटरनेट होता तो अभी तक उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया होता, उन्हें डिग्री मिल गई होती। बट इंटरनेट ना होने के बावजूद हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हम ना आगे बढ़ रहे हैं और ना पीछे जा रहे हैं, वहीं के वहीं फंसे हैं। तो आई रियली होप एंड आई स्ट्रांगली अर्ज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार कि आप जल्द से जल्द इंटरनेट को स्टेबल करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए, स्पेशली मोबाइल डेटा वालों के लिए, ताकि अगर उनके पास ब्रॉडबैंड भी नहीं है तो मोबाइल डेटा यूज़ करके कुछ तो अपना लाभ उठा सकते हैं इस इंटरनेट का। तो आई होप कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाएगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू। The residents of North and Middle Andaman district have been facing several issues because of the poor telecommunication services of BSNL. Leaving internet aside, the call over BSNL 2G network doesn't work properly there. The local BSNL authorities always play the blame game. Let's listen to a resident of Rangat who wants to keep his identity confidential. एक्चुअली सर क्या स्टेटस है अभी वहाँ पे ब्रॉडबैंड का नॉर्थ एंड मिडिल में? ब्रॉडबैंड अच्छे से चल रहा है? नॉर्मली चल नहीं अच्छे चल मुझसे कल आपका सुबह से आज सुबह आया तो 24 आवर्स नहीं था, ओके बंद था पूरा। हाँ अभी आया है। और स्पीड बोलने से पोर्टल में जैसा एमबी में ऐसा नहीं है, 100 के भी उस तरह मैक्सिमम आता है, 100-200 ज्यादा नहीं रहता। अच्छा 100-200 केबी के आसपास चल रहा है अभी ब्रॉडबैंड? हाँ अभी बोल से आपका नहीं है। ओके, और इसका मोबाइल नेटवर्क का क्या स्टेटस है बीएसएनएल का? क्योंकि बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था कि मोबाइल नेटवर्क भी वहाँ नॉर्थ एंड मिडिल में ठीक से नहीं चलता है। मोबाइल नेटवर्क हम 2-3 साल से यूज ही नहीं कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड यूज कर। ओके, नहीं कॉलिंग के लिए बीएसएनएल मोबाइल कॉलिंग जाता नहीं है, कॉल जाता है 4-5 बार कॉल करने से। हाँ तो कॉल उसके लिए भी मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है, परेशानी हो रहा है आपको ना? हाँ इसीलिए ऑप्शन एयरटेल अच्छा चलता है, एयरटेल रखा है, इससे आपको कॉल किया। ओके चलता नहीं है। ओके, तो मतलब ब्रॉडबैंड 100-200 में चल रहा है और मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से नहीं चल रहा। तो वहाँ पे आप लोग कोई भी लोकल अथॉरिटीज वगैरह के पास गए हैं क्या? मतलब अप्रोच करे थे कि ये नहीं चलता है बोल के, मतलब बीएसएनएल का वो मोबाइल वगैरह? ठीक से उस लोग नहीं, ठीक से कुछ रेस्पॉन्स देता नहीं है, बोलेगा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो पोर्टल से आके ठीक होएगा। इसलिए हम लोग मुझसे अभी जाते ही नहीं है। इसीलिए अभी वो फोन को हम लोग प्राइमरी सिम अभी एयरटेल हो गया है, थोड़ा नंबर में अच्छा मिलता है। ओके, अपग्रेड किया एयरटेल वाला, इसीलिए एयरटेल का यूज करता है। अच्छा, मतलब कॉल ड्रॉप भी नहीं होता है। ओके, मतलब आप लोग बीएसएनएल का मतलब अवॉइड ही कर रहे हैं मतलब अभी नॉर्थ एंड मिडिल? हाँ अवॉइड कर रहा है जी। Further, students from North and Middle Andaman are also facing a lot of difficulties because of slow and unreliable internet. Let's listen into Mr. Tushar from Billy Ground. तो वही मेरे को वहाँ पे नेटवर्क के अभी स्टेटस के बारे में जानना था कि अभी ब्रॉडबैंड वगैरह वहाँ पे कैसा चल रहा है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में? हाँ यहाँ पे इशू तो किए हैं भारत फाइबर वाले, मैंने अभी 2 महीने पहले ही लगाया है। बट इनिशियली जब लगाया था हमने तो अराउंड 30-40 केबी पे स्पीड आता था दिन भर में। एंड देन डाउनलोड तो दिन भर में बहुत ही मुश्किल, इट्स नॉट पॉसिबल। बट देन उसके बाद धीरे धीरे फिर अब जब इन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, धीरे धीरे सबको ट्रायल देना स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा है। माइट गो टू 80 और 90 केबीपीएस ड्यूरिंग डे टाइम। तो 80 और 90 केबीपीएस स्पीड अभी भी आपको मिल रहा है वहाँ, वो भी भारत फाइबर पे? हाँ एफटीटीएच में मैं अभी अगर चेक करूंगा, मैंने दिन को चेक किया तो अराउंड 85 केबीपीएस आ रहा था। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपने लोकल अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया था क्या बीएसएनएल के? इतना कम स्पीड आ रहा है। एक्चुअली 80-90 केबीपीएस तो ब्रॉडबैंड का स्पीड भी नहीं है। ब्रॉडबैंड तो 500 पर केबीपीएस से ऊपर की स्पीड को
बोला जाता है, तो आपने एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट किया मोबाइल था डेटा की स्पीड उससे ज्यादा होती है, तो हमने हमने अभी तक तो किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी यूजर्स बहुत कम है, तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके। लोग मैक्सिमम इतने स्पीड से खुश है, उनका व्हाट्सएप चल जाता है, उनसे ही वो खुश है। तो एग्जैक्टली आप कौन से एरिया पे रहते हैं नॉर्थ एंड मिडिल में? मैं यहाँ पे बिली ग्राउंड में रहता हूँ। ओके, बिल्ली ग्राउंड में। ओके, जी। तो वहाँ पे कितने यूजर्स होंगे FTTH के टोटल बिल्ली ग्राउंड में? पहले मुझे आइडिया नहीं है, मैं एक्चुअली बाहर पढ़ता था, मैं अभी पेरेंट्स के पास आया हूँ। आई गेस ओके 100-150 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके। तो आपको तो बहुत प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेंड करने में, राइट? इसकी वजह से? जी, मेरी क्लासेस थी इनिशियली तो, बट वो तो फिर मुझे कैंसिल करवानी पड़ी। मैंने कॉलेज को स्पेशल रिक्वेस्ट भेजा कि मैं ऐसे यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मैं ओके कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। बट देन मैंने ट्राई किया काफी बार क्लासेस अटेंड करने का, बट देन पॉसिबल नहीं था वो। ओके ओके, थैंक यू। An unfortunate accident took place at Rangat yesterday, where a youth lost his life. According to the reports, 5 youth, after partying at Morris Dera beach, were going back towards Billy Ground when their vehicle hit a rock. The driver of the vehicle was under heavy influence of alcohol and lost control over the vehicle. One person lost his life, who was sitting at the rear seat of the vehicle. Due to bad network, the youths couldn't call the emergency services and waited there for about 40 minutes before an IRBN Jawan spotted them and then passed on the information, after which ambulance arrived. Bad communication network in North and Middle Andaman district was also a reason for the death of one youth. Let's listen into a resident of the area who has first-hand information of the incident. हाँ जी सर। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। ये इंसिडेंट कैसा हुआ सर एग्जैक्टली, और हुआ कहाँ था ये इंसिडेंट? चित्राकूट का आगे एक जहाँ से ना ELSW वाला पानी भरते हैं वो आसपास में। अच्छा, तो उसमें हाँ। जो ड्राइवर था वो मतलब ड्रंक था क्या? हाँ। ओके, और क्या हुआ ये नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से कुछ इशू आया था उनको? क्या था सर, क्या मतलब क्या हुआ था? असल में यहाँ पे मिडिल में नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाए थे। होता है ना तुरंत एक्सीडेंट, तुरंत एम्बुलेंस। जी जी। और उस समय शायद संडे था ना उस दिन। जी ओके। तो हाँ, तो उसकी वजह से कोई ज्यादा आना जाना भी नहीं था। कितने देर वहाँ पे थे सर वो लोग एक्सीडेंट के बाद? मतलब कितना देर वो स्पॉट पे थे वहाँ पे? करीबन 35-40 मिनट। 35-40। उसके बाद मतलब किसने देखा उनको, फिर कैसा इन्फॉर्म किया? असल में अपना एक जवान था, IRB का जवान था जी। तो वहाँ से अपना ड्यूटी ऑफ करके वो घर जा रहा था। ओके। तो उसने देखा कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो बोला ठीक है मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, तो वो बेटापुर जाके कम्युनिकेशन किया। ओके, तो वहाँ हाँ अभी वहाँ से कम्युनिकेशन पास हुआ है। ओके, बेटापुर से कम्युनिकेशन पास हुआ, उसके बाद फिर हाँ। एम्बुलेंस आया फिर उनको लेके गया। हाँ हाँ। तो अभी उनका हालत कैसा है सर? उसमें तो एक का तो डेथ हो गया, बाकी लोगों का हालत कैसा है सर अभी? असल में मेडिकल गया नहीं और उसका बाद हम कुछ पता भी नहीं करा। ओके, तो देखता हूँ कुछ पता करके फिर हम बताता। That's all in today's news bulletin. Download the Nico app, subscribe to our YouTube channel and follow our Facebook page to stay updated with the latest Andaman and Nicobar Island news stories. Thank you.